میں آپ کو زحمت دی گئی. اس کی ضرورت محسوس اس لیے ہوئی کہ آپ کی نظر ہے ایونٹس پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ اول مسجد الاقصی میں جو کچھ ہوا اور جو جاری ہے، پاکستان کو اس پر بے پناہ تشویش ہے. اور ہمارا ایک نقطہ نظر ہے. اس نقطہ نظر کو وزیر اعظم نے جب وہ جدہ میں تھے حال ہی میں، سیکرٹری جنرل OIC سے ان کی ملاقات ہوئی اور عمران خان صاحب نے اپنے تحفظات اور اپنا نقطہ نظر جو ہے اس پر بڑا واضح طور پر بیان کر دیا تھا. کل رات ترکی کے وزیر خارجہ کا مجھے فون آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ پہلے تو سعودی عرب کا جو ہمارا وزٹ ہے اس پر بھی، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت مکہ میں ہوں اور میں کل جدہ جا رہا ہوں اور میری وہاں سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں بہت سے ایشوز ڈسکس ہوں گے، لیکن یہ الاقصی کا جو ایشو ہے یہ بھی زیر بحث آئے گا، کیونکہ ترکی نے بھی اس پر ایک واضح اپنا موقف اپنایا ہے. ترکی کے علاوہ اب تو بہت سے ممالک نے، آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی اس پر ایک نقطہ نظر آیا ہے، آپ نے انڈونیشیا کا نقطہ نظر بھی دیکھا ہوگا، آپ نے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جو ایک نقطہ نظر آیا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور جو فورسبل ایوکشن ہے اس کے خلاف جو نے بات کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے. میں جرمنی کے وزیر خارجہ کا نقطہ نظر دیکھ رہا تھا، اسی طرح میرے سامنے بہت سے اور بھی ہیں جو میں نے صبح ہی دیکھ رہا تھا جس پہ چیزیں آئی ہیں سامنے. UK نے جو بات کی ہے، ایجپٹ نے جو بات کی ہے، جارڈن نے جو بات کی ہے، یہ سب آپ کے سامنے ہے. کل ہماری گفتگو میں یہ انہوں نے مجھ سے کہا، شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان کا موقف جو ہے فلسطین پر، الاقصی پر، ان پر بڑا، جسے کہتے ہیں نا، بڑا واضح رہا ہے، اور اس میں بڑی ایک کوئی امبیگوٹی نہیں ہے ہماری طرح. تو اس لیے میں پہلے آپ سے بات کر رہا ہوں، اور میں نے ان سے اتفاق کیا. وہ آج اپنی نشست میں پرپوز کرنے جا رہے ہیں کہ OIC کا منسٹریل لیول کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور اس مسئلے پر سب سے پہلے امہ کو یکجا کیا جائے، تاکہ ایک مؤثر آواز جو ہے یہ جو وہاں تشدد ہوا ہے جو جاری ہے، 527 کے قریب لوگ زخمی ہو چکے ہیں، 20 کے لگ بھگ اموات ہو چکی ہیں، نہتے لوگوں پر، نمازیوں پر 27ویں کی رات عبادت کے لیے. اور پھر آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل لا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں. نہتے لوگ کر رہے کیا ہے؟ عبادت مسجد میں. اور اس پر یہ جو وہ کیا کہتے ہیں، سٹن گرینیڈز پھینکے گئے، جناب ان پر لاٹھی چارج ہوا، واٹر کیننز کا استعمال ہوا، ایریل اٹیک ہوا، ربر بلٹس فائر کی گئی. This is against any norm. اور اس کی پاکستان پرزور مذمت کرتا ہے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اور اپنی امہ کے دیگر ممالک کے ساتھ، ان کی عوام کے ساتھ، ان کے نقطہ نظر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان نے مجھ سے یہ بھی شیئر کیا کہ وہ سوچ رہے ہیں، اور اس پر بھی ہم تبادلہ خیال کر رہے ہیں، کہ ان حالات کو جس طرح سے ٹینشنز ایسکیلیٹ کر رہی ہیں، ان کو ڈی ایسکیلیٹ، ان کو ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک ہنگامی اجلاس کی بھی ایک تجویز زیر غور ہے.
اس پہ بھی کنسنسس بلڈنگ درکار ہے. تو یہ چیزیں تھیں جس پر یہ چیز جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ فورسبل ایوکشن جو شیخ جراح کی جو نیبرہڈ ہے اس پہ جو ہو رہی ہے, اس کو فی الفور بند ہونا چاہیے. تشدد کو فی الفور بند ہونا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو فی الفور اس پر موبلائز ہونے کی ضرورت ہے. وہ اس سے غافل نہیں رہ سکتے. جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کو تشویش ہے کہ حماس کے لوگوں نے کچھ راکٹ فائر کر دیے ہیں, بالکل ہم نہیں چاہیں گے ایسکیلیشن ہو, لیکن ان کو یہ تشویش بھی ہونی چاہیے کہ نہتے نمازیوں پر جو اسٹن گرنیڈ پھینکے گئے وہ کس ضابطے اور کس قانون کے تحت اس کی اجازت ہے, کون اس کو اجازت دیتا ہے, اور اس کو صرف نظر ہم کیوں کریں. تو ایک یہ چیز تھی جس کو ہم سامنے رکھ کر اپنا ایک پوزیشن ہم لے رہے ہیں. پاکستان کی پوزیشن اس پہ واضح ہے. میری کل رات وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی, میں نے رات کو انہیں بھی اعتماد میں لیا, تو ہو سکتا ہے آج وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرے, کیونکہ ان کا بھی ایک نشست ہے جس پہ انہوں نے کوشچن آنسر سیشن ہے جو انہوں نے کرنا ہے. دوسری چیز جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے جو ہمارا سعودی وزٹ ہوا. الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بے پناہ مسرت ہے کہ غیر معمولی نوعیت کا یہ دورہ تھا. 3 روزہ دورہ تھا. سعودی انویٹیشن پر وزیر اعظم نے یہ دورہ کیا, اور اس دورے کے جو نتائج ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو واضح دکھائی دیں گے. ایک تو آپ دیکھیں کہ اس میں گرم جوشی غیر معمولی تھی. کراؤن پرنس خود آئے ریسیو کرنے, اور جو ان کی 1-on-1 میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ, جو ان کی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئی ہمارے ساتھ, اور پھر جو تیسری نشست ہوئی ایٹ ڈنر جس میں پرائم منسٹر صاحب تھے, آرمی چیف تھے اور میں تھا, ہم 3 تھے, اور ان کی طرف سے کراؤن پرنس تھے, ان کے وزیر دفاع تھے, اور ان کے انٹیریئر منسٹر تھے. کھل کر تبادلہ خیال ہوا. الحمدللہ پاکستان بہت سے ایشوز پر سرخرو آج دکھائی دے رہا ہے, اور دونوں اس طرف یہ ایک آگاہی ہے, اعتراف ہے کہ ہمارے تعلقات غیر معمولی نوعیت کے ہیں. ان کی گہرائی اور ان کی وسعت کو ہم دونوں ممالک سمجھتے ہیں, اور ان کو مزید آگے بڑھانا ہم دونوں کی ضرورت ہے. ہمارے جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں, ہمارے جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں, وہ تو عمدہ تھے, ان کو ایک نیا رخ دینے کی ضرورت ہے, اور اپنا جو اکنامک جو پارٹنرشپ ہے, کوآپریشن ہے, اس کو ہم کس طرح انہانس کر سکتے ہیں. یہ ان مذاکرات میں یہ ہم نے اس پر توجہ دی کہ انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں, بائی لیٹرل ٹریڈ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں, جاب اپرچونٹیز کریٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس پر بھی ہماری بات ہوئی. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ ہم باتیں تو پہلے بھی کیا کرتے تھے, لیکن کوئی سٹرکچر نہیں تھا, کوئی ایک انسٹیٹیوشنلائز سٹرکچر میکنزم نہیں تھا, اور اب ہم نے ایک انسٹیٹیوشنلائز سٹرکچرڈ میکنزم ان پلیس کر دیا ہے. جو معاہدہ ہوا ہے, جس کو سائن کیا ہے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے, وزیر اعظم پاکستان نے, اس سے ایک سٹرکچرڈ ڈائلاگ کا ایک میکنزم اب ان پلیس آ گیا ہے. اس کے 3 پلرز طے ہو گئے کہ سیکیورٹی میں اور پولیٹیکل ایریا میں کیا بات ہوگی, کون لیڈ کرے گا, اکنامک فیلڈ میں کیا بات ہوگی, کون لیڈ کرے گا, جو کلچرل اور ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے, وہ کون کرے گا, کون لیڈ کرے گا, کیا ہوگا. تو یہ اس کے خد و خال ہم نے طے کر دیے ہیں, اور یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اچھی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بہت سے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز میں سے ایک چیلنج بے روزگاری ہے, اور ہم چاہیں گے کہ سرکاری ملازمتوں میں کتنے لوگوں کو آپ کھپا سکتے ہیں, ایک لمٹ ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمارے لیے ایک اوپننگ ہمیں دکھائی دی ہے, کیونکہ کراؤن پرنس کا جو ویژن 2030 ہے
उस विजन को सामने रखते हुए उन्होंने कैलकुलेट किया है कि आने वाले दिनों में उनको मजीद वर्क फोर्स दरकार होगी, जिसमें ब्लू कॉलर जॉब्स भी होंगे और जिसमें वाइट कॉलर जॉब्स भी होंगे। और उनकी ख्वाहिश है कि वाइट कॉलर जॉब्स में भी पाकिस्तानी अपने आप को पेश करे, सिर्फ मजदूर तबका ना भेजें। अब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आईटी के पढ़े लिखे नौजवान आपके पास मौजूद हैं, उनकी थोड़ी सी स्किल ट्रेनिंग हो जाए तो उनको, उनकी बेपनाह डिमांड है, उनकी बेपनाह खपत है, न सिर्फ सऊदी अरेबिया में है, पूरे गल्फ में है, मिडिल ईस्ट में है, तो उनके लिए ओपनिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ये कुवैत के वजीर खारजा से मेरी बात हुई, मेरी यूएई के वजीर खारजा से बात हुई और इसके लिए वो तैयार हैं। हमने भी तैयारी करनी है कि हमारे पास लोग मौजूद हैं, टैलेंट मौजूद है, थोड़ा सा हमने उसको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग, थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है और लोगों के लिए दरवाजे रोजगार के खुल सकेंगे। उस पे सऊदी अरेबिया ने जो इशारा दिया है वो खुशाइंद है। वो ये है कि अगले चंद सालों में उनको तकरीबन 10 मिलियन एडिशनल हैंड्स रिक्वायर्ड होंगे। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पाकिस्तानियों के लिए जो कहते हैं ना एलोकेट करना चाहते हैं और उसमें हमें तैयारी करनी चाहिए। हमारे जो इदारे से डील करते हैं उनको आज ही से उसको प्लान करना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अपनी वर्क फोर्स उसके मुताबिक मुरत्तब करनी चाहिए ताकि लोग वहां जा सकें। तो एक तो ये अच्छी पेशरफ्त है। फिर उसमें आपने देखा कि हमारे MOU साइन हुए। उन MOUs का एक का मैंने जिक्र कर दिया, 4 और हैं। 2 ऐसे हैं जो इंटीरियर से रिलेटेड थे, शेख रशीद साहब ने उनको साइन किया। एक डील करता है कॉम्बैटिंग क्राइम के साथ और दूसरा डील कर रहा है वो जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं उसके बारे में। फिर 2 MOUs और हुए जिनको मैंने साइन किया। एक है जो नारकोटिक्स ड्रग्स के साथ जो उसको डील करने के लिए हमारा फ्रेमवर्क है और दूसरा है $500 मिलियन जो सऊदी फंड से हमें मुयस्सर आएगा और वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ जो मेरी उस नशिस्त के बाद फिर मेरी मीटिंग हुई थी, एक बायलैटरल मीटिंग हुई थी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से और उनसे ये तय पाया उस गुफ्तगू के बाद कि ईद के बाद इंशाअल्लाह एक सीनियर ऑफिशियल्स का एक वफद पाकिस्तान आएगा और जो हमारी गुफ्तगू हुई है इसको लेकर आगे बढ़ेगा। तो इंशाअल्लाह उस पे हम काम कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट के बाद फिर उनके वजीर खारजा को मैंने दावत दी है, जो ने कबूल की है, वो तशरीफ लाएंगे पाकिस्तान और वो चंद घंटों के लिए नहीं, कम से कम 1-2 दिन के लिए यहाँ तशरीफ लाएंगे और वसी इंटरेक्शन उनका होगा और हम करवाएंगे ताकि हम वो हद हाल तय कर लें जिसकी बुनियाद पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अगला विजिट जो है वो पाकिस्तान का हम उसको तय करें। जो पहला विजिट हुआ था उसने गुडविल जनरेट की थी और हम चाहते हैं ये जो प्राइम मिनिस्टर के विजिट से जो मोमेंटम जनरेट हुआ है इसका एक प्रॉपर फॉलो अप हो। तो ये मैं आपके सामने दूसरी चीज रखना चाहता था। और तीसरी डेवलपमेंट जो रात को आपके सामने आई है और वो आपके इल्म में है कि कलामी चीफ DGI काबुल में थे, उनकी मुलाकातें हुई और वापसी पे DGI ने मुझसे बात भी की है और मुझे उनने वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर एतमाद में लिया। और खुश आइंद बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हम चाहते थे कि पीस और रिकन्सिलिएशन का अमल आगे बढ़े, तो कल की नशिस्तों के बाद उसके इम्कानात बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ये भी हकीकत है कि काबुल में 1-2 वाकयात ऐसे हुए हैं जिनकी हमें बेपनाह तकलीफ हुई है। खास तौर पर वो जो बच्चियों के स्कूल पर जो हमला हुआ और तकरीबन 85 के लगभग उसकी अब अमवात हो चुकी हैं। निहत्ते मासूम बच्चों को निशाना बनाना ये
کوئی اسلامی قدروں کے مطابق ہرگز نہیں ہے. اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ بیچارے ماں باپ وہاں بستے دیکھ رہے ہیں, جوتے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو دفنا رہے ہیں. میں نے تو وہ سین دیکھے ہیں اور سچی بات ہے بہت تکلیف دہ وہ سینز تھے. اس کی پاکستان نے فی الفور مذمت بھی کی تھی اور بالکل ہم افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ان کے امن میں, ان کے استحکام میں شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ اگر افغان حکومت اور طالبان جو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو لے کر آگے چلے اور ایک پولیٹیکل سلوشن گفت و شنید سے وہ طے کرے, وہ ان کے اپنے مفاد میں ہے, ان کے ملک کے مفاد میں ہے. اور اب جبکہ وڈرال کا آغاز ہو چکا ہے اور وہ تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, ٹروپ وڈرال ہوگا, زیادہ ذمہ داری افغانوں پر اب عائد ہو گئی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات کو سلجھائیں اور پیس اور ریکنسیلیشن پروسیس کو وڈرال کے ساتھ ساتھ اس تیزی سے آگے لے کر چلے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ان کو ری اشور کرنا چاہتا ہے کہ ہم امن کے اس عمل میں ان کے ساتھی ہیں, ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہم ان کے خیر خواہ ہیں, ہم دعا گو ہیں, ہم ایک خوشحال یونیفائڈ سوورن افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نے ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا ہمارا فیصلہ ہے. ہم سے جو پازیٹیو وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے یہ تیار ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے بعد جو سب سے زیادہ مستفید ہوگا وہ پاکستان ہوگا. ریجنل کنیکٹیوٹی کے امکانات بڑھیں گے, ایسٹ ویسٹ کوریڈور کے کھلنے کے امکانات بڑھیں گے, افغانستان کے ساتھ ساتھ سینٹرل ایشین مارکیٹس کی رسائی ہماری ہو جائے گی, ہمارے جو گیس پائپ لائن, ہماری جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل ہوتی ہیں, کاسا کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں آسانی پیدا ہوتی ہے, بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھنے کے امکانات موجود ہیں, اور جو ہمارا اکنامک کوریڈور ہے, جو گوادر پورٹ ہے, اس کو آپریشنلائز کرنے میں مزید اس کو فعال کرنے میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ لینڈ لاکڈ علاقہ ہے سارا, افغانستان ہو, سینٹرل ایشیا ہو. تو جب یہ گوادر تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور ان کو شارٹیسٹ پاسبل روٹ دیتا ہے ٹو سی ویز, تو لوگوں کی نگاہ کس طرف ہوتی ہے, مڑتی ہے گوادر کراچی کی طرف, پاکستان کی طرف. تو اس سے پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھتی ہے, اور جو ہماری پالیسی ہے شفٹ فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس اس کے عین مطابق ہے. ہم اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو اپنی اکنامک ویل بینگ کے لیے جو استعمال کرنے کا جو ہمارا ایک خواب ہے, جو ہماری سوچ ہے, جو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہماری ترجیحات میں ہے اکنامک ڈپلومیسی کو بروئے کار لانا, تو اس میں ہمیں آسانی پیدا ہوگی. تو یہ چند گزارشات تھی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. جی کین دا لیڈی ریگولیٹ اور سوال جواب ہو جاتے. Well, it's a difference because there's a new realization on both sides. It's different because it has defeated the designs of that element that was trying to draw a wedge between Saudi Arabia and Pakistan. آپ دیکھیں بیوی کہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ اچھی خبر تو خبر ہے ہی نہیں, خبر تو ہے ہی ہے وہ جو بری ہے. تو کوئی اچھی خبر آتی ہے وہ ہماری نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ہندوستان کوئی موقع نہیں چھوڑتا پاکستان کو نیچے دکھانے کا. ہمارا میڈیا سچی بات ہے اس پر توجہ نہیں دیتا. 7 کلو ہیروئن پکڑی گئی, ہیروئن کہہ رہا ہوں, یہ یورینیم پکڑی گئی. اب
बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। आई एम सॉरी मतीन साहब, यू स्टैंड करेक्टेड। मेरे भाईजान, तशवीश का इजहार नहीं किया, हमारी स्टेटमेंट देख लीजिए, हमने बात की है, मुख्तलिफ जावियों से बात की है, पर उसको आगे लेके किसने चलना है? यार फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट काफी नहीं है। इंडियन मीडिया उनके साउथ ब्लॉक की कहानी को एम्पलीफाई करता है अपने जाविये से। आप इंडिपेंडेंट लोग हैं और आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, पर ये एक बहुत बड़ी खबर है भाई। मतलब आप खबर के तलाशी हैं तो एक बहुत बड़ी खबर है, इसका प्रोब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुदा ना खास्ता उनके हाथ से खबर आई होती तो दे वुड हैव टेकन अस टू टाउन बाय नाउ। वी हैव टू सी हमने क्या किया। अब अहमियत इसकी ये भी मुख्तलिफ ये है कि ये एक रियलाइजेशन के एक विन विन कोऑपरेशन में हम हमेशा गेन करते हैं। एक दूसरा, जो पाकिस्तान कहता आया और कि देखिए उम्मा का यकजा होना हमारे मफाद में है। सऊदी अरब की अपनी अहमियत है, उनका वजन है। दे आर द कस्टोडियंस ऑफ द टू होली मॉस्क्स और लोग उनकी दे लुक अप टू देम। ओआईसी को संभालने में, बनाने में उनका एक कलीदी किरदार है। हम भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो उनसे लोग तवक्कुआत वाबस्ता करते हैं एक लीडरशिप रोल का। और जब उम्मा के अंदर थोड़ी सी हमें एक तकसीम दिखाई दे तो उससे मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। और हमें देखना चाहिए कि अगर हमारी कोई गलत फहमियां हैं उन्हें दूर होना चाहिए। हमने ऑफर किया, मीडिएशन की ऑफर की। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो वहां मेरी बायलैटरल गुफ्तगू हुई और वजीर खारजा ने एतमाद में लिया, उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारी गुफ्तगू का आगाज हो चुका है और कल ईरान की मिनिस्ट्री ने भी उसकी तस्दीक कर दी। तो पाकिस्तान की एक ख्वाहिश जो थी बेहतरी की, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक उसका आगाज हुआ है, एक शुरुआत हुई है, एक फासला है। उस फासले को मिटने में टाइम लगेगा, लेकिन वो तनाव जो है उसमें एक बेहतरी दिखाई दे रही है। आज आप देख रहे हैं कि तुर्की के वजीर खारजा इस वक्त सऊदी अरब में बैठे हैं। क्या ये बेहतरी नहीं है? आप देख रहे हैं कि जीसीसी के अंदर जो एक खिंचाव था वो तब्दील हुआ है। आज वो खिंचाव नहीं दिखाई दे रहा। आज अमीर जो कतर के हैं उनको दावत दी गई है और वो सऊदी अरेबिया तशरीफ ले जा रहे हैं, और वो जो ब्लॉकेट था, जो सफारती ताल्लुकात मनकता हो गए थे, वो बहाल हो गए। तो ये पेशरफ्त है। ये एक नई डेवलपमेंट्स है मशरिक़ वस्ता में और इस खित्ते में, उसकी उस तनाजुर में ये विजिट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इस विजिट में हमने रीजनल इशूज, बायलैटरल इशूज और इंटरनेशनल इशूज पर तबादला ख्याल किया। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेज। दूसरा सर ये है कि हमारी आला क़यादत की तरफ से हमारे सफारतकारों के हवाले से बयान आया, जिसके बाद हमारी डिप्लोमेटिक सर्विस की बैशिंग शुरू हो गई है पूरे सोशल मीडिया पे। सर रिपोर्टर से लास्ट 25 ईयर्स मेरे जैसे लोगों को इसकी तशवीश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बारे में बातें, क्योंकि इनका मुराद जो है वो पाकिस्तान का मुराद है, तो इनका मुराद आप होना चाहिए हमारे पास। फिक्र न कीजिए, मैं चाहिए, लेट मी आंसर दिस फर्स्ट एंड देन यू कैन गेट अ क्वेश्चन। मैं दोनों को जवाब देता हूं। आई मीन नो हरी, आई एम हियर विद यू। पहली बात, कश्मीर पर बात हुई भाईजान। हमारी जो हमारी स्मॉल ग्रुप मीटिंग थी जिसमें चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे, मैं भी था, बिल्कुल बात हुई और हमने अपना नुक्ता नजर बड़ा वाजे बयान किया कि पाकिस्तान का मौकिफ है क्या। 5 अगस्त 2019 के इक़दामात ने माहौल को बिगाड़ा कैसे, उसका जिम्मेदार कौन है, करेक्टिव मैकेनिज्म, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिम्मेदारी अब किसकी ठहरती है। उससे हिंदुस्तान ने इन इक़दामात से अपनी पजीराई उसमें इजाफा हुआ है या एलियनेशन में इजाफा हुआ है, ये सब चीजें एनालाइज करने की हैं। अब तक खासा वक्त गुजर चुका है और आज हिंदुस्तान के अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं वो क्या कह रही हैं,
उस पॉलिसी के बारे में। आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो चुका है जो बीजेपी सरकार की कश्मीर पॉलिसी को नाकाम समझ रहा है। वो समझता है कि उससे कश्मीरी एलियनेट हुए हैं, फासले बड़े हैं, दूरियां बड़ी हैं, कशीदगी में इजाफा हुआ है, जुल्म बर्बरियत में इजाफा हुआ है, डबल लॉकडाउन का कश्मीरी शिकार हैं। ये सब चीजें सामने आई हैं और इस पर खुल के बात हुई और हमने उनको बताया कि पाकिस्तान और हमारी हुकूमत, वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत तो पहले दिन से कह रही थी कि आप अमन की तरफ एक कदम उठाएं, हम 2 उठाने के लिए तैयार हैं। कदम उठाने से कतराना कौन है और जो मनफी इकदामात हैं उसको रिविजिट किसने करना है? हिंदुस्तान अगर उस पर नजरसानी करने के लिए तैयार है, कश्मीरियों को रिलीफ देता है, उनके लिए आसानियां पैदा करता है और उनका जो तशख़्ख़ुस जो पामाल किया गया है उस पर नजरसानी करता है, तो पाकिस्तान इज विलिंग टू एंगेज। हम तो अमन चाहते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी एजेंडा है, पैराडाइम है, उसका तो एक बुनियादी सुतून अमन है और हमें उसमें तक़वियत मिलती है। तो बिल्कुल मेरे भाई उस पर बात हुई और बड़ी अच्छी बात हुई। एक दूसरा, आपने बात की फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स की। देखिए, हमेशा हमने जो है उसको देखना होता है और देखना होता है कि उसमें बेहतरी कैसे की जा सकती है। वज़ीर आज़म को कुछ शिकायत मिली जो काउंसिलर सर्विसेज थी उसके बारे में, और हैसियत एक मुंतखब नुमाइंदा के वज़ीर आज़म के ये उनका नोटिस लेना बजा तौर पे दुरुस्त है और उन्होंने उसका नोटिस लिया। मकसद क्या था? बेहतरी। मकसद क्या था? इस्लाहात। और इंशाअल्लाह हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। हम इस्लाहात के लिए हमने एक प्लान बनाया है। उस नशिस्त के बाद मैंने जितने फॉरेन ऑफिस में, हेडक्वार्टर्स में हमारे साहिबान थे, मैंने उन्हें इसी कमरे में मुद्दू किया और मैंने पूरा स्याक व सबाक और पूरा तनाजुर उनके सामने रखा। उनको एतमाद में लिया कि हमसे तवक्कुआत क्या है और हमें कहां कहां बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। उसके बाद वजीर आजम से मेरी बात हुई है और उस बात में फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और उसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। फॉरेन सेक्रेटरी की सरबराही में हम जितने मिशंस हैं उनसे भी हमने इनपुट मांगा है कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं हम। बेहतरी, अगर सर्विस डिलीवरी हमने बेहतर करनी है तो क्या करनी है। समझने की जरूरत यह है कि एक एम्बेसी है, उसमें मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं। कुछ ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं टू द फॉरेन ऑफिस, कुछ ऑफिसर्स हैं जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के हैं जो वहां बैठते हैं, तैनात हैं। उनकी पोस्टिंग फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनका ट्रांसफर फॉरेन ऑफिस नहीं करता, उनकी एसीआर फॉरेन ऑफिस नहीं लिखता जी, और वो रिपोर्ट अपनी मिनिस्ट्री को करते हैं। अब उनकी एक्टिविटीज को और जो फॉरेन ऑफिस के जो एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, उनको डवटेल कैसे किया जाए। जिम्मेदारी तो एम्बेसडर की है, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाने में उनके लिए आसानियां कैसे पैदा की जाए, तो उसके लिए हम एक तजावीज मुरतब कर रहे हैं और वो तजावीज इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे। आज भी आपकी इस प्रेसर से पहले जितने सीनियर फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स थे, छुट्टी का दिन है, मैंने उनको जहमत दी और उनकी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो छुट्टी के दिन भी यहां तशरीफ ले आए और मैंने उनके साथ तबादला ख्याल किया ऑन द वे फॉरवर्ड। उस वे फॉरवर्ड पर हमने बात की है। इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे और बेहतरी करेंगे और उनका मोराल बिल्कुल इंशाल्लाह हम डाउन नहीं होने देंगे। देखिए, मेरी नजर में सब दुरुस्त था। मेरी नजर में इस इवेंट को जिस तरह उसकी पब्लिक तशहीर की गई उसकी जरूरत न थी। हर चीज के इन हाउस मीटिंग के अपने नॉर्म्स होते हैं और उनका एहतराम हम पर लाजिम है। और फिर उसका क्या हुआ? बतंगड़ किसने बनाया? हिंदुस्तान ने बनाया। पाकिस्तान के मुखालिफिन ने उसको उछाला। वो पाकिस्तान के मफाद में हरगिज नहीं था, नहीं है। तो बिल्कुल मैं फॉरेन ऑफिसर्स की बैशिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। इंशाल्लाह इस्लाह होगी, बेहतरी होगी, रिफॉर्म्स होंगे, बैशिंग नहीं होगी। Questions all over.
यार एक सेकंड, व्हाई डू यू गेट वर्कड अप? रिलैक्स. कोई आपको इनकार कर दिया सवाल को? होल्ड ऑन यार, बी पेशेंट. रोजा है, आराम से. जी जी बिल्कुल हुई, बिल्कुल हुई. हमने एक वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो हमारे नए सफ़ीर वहाँ गए हैं, उनको एक मुफस्सल उनके साथ नशिस्त की और उनको बताया कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं. जो मिशंस के साथ उनने एड्रेस किया, जो उसका देखिए, लोग मनफी पहलू उठाते हैं, मुस्बत पहलू सरफ नजर कर देते हैं. मुस्बत पहलू यह है कि उन्होंने उनको बताया कि उन्हें उनकी खिदमत के लिए, आसानियां पैदा करने के लिए क्या क्या इकदाम लेने चाहिए, किस तरह आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनके लिए आसानी पैदा कर सकती है और उन्हें उसको बरूए कार लाना चाहिए. तो उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह होगा और उनके लिए बेहतरी आएगी. सर, ये बहुत बड़ी तादाद से पाकिस्तानियों की सऊदीया से वापस आ गई है. टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए उनके ऊपर. तो सर, जो उस टैक्सेस की बोझ से वो वापस आ गए, फैमिलीज वापस आ गई है, तो आप सवाल आ गया, समझ आ गई. बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और उसका नोटिस भी लिया गया है और उस पर इस्लाहात भी हुई हैं और सऊदी अरेबिया ने उस पर रिफॉर्म्स भी की हैं और उस रिफॉर्म्स में आपने देखा कि उनके लिए आसानियां पैदा की हैं. वो जो पहले कैद होते थे एक अपने क्या कहते हैं जी उसको, अकामा के और वो कफील के, उससे आजादी उनको मिली है और वो अब उससे हटकर कई और भी जॉब तलाश कर सकते हैं. इतने जकड़े हुए नहीं होंगे जैसे पहले थे. उसके साथ साथ उन्होंने रिलैक्सेशन भी का आगाज कर दिया है और नई इनटेक का, ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया है. तो इंशाल्लाह वो आसानी पैदा हो जाएगी. चले चले बीबी, मैं ही कर देता हूँ. थैंक यू सो मच सर. राशिदा सियाल अख्तर से. सर, यहाँ पे कुछ तज्जियाकार और तबसरे निगार ये कह रहे हैं कि इतने मंथ्स की विजिटनेस के बाद जिस तरीके से सऊदी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया और ये सारा विजिट हुआ, इसकी बड़ी भारी कीमत पाकिस्तान अदा करेगा. अच्छा, वो बताएं क्या है, जरा कीमत बताएं. सर, मैं भी आपसे जानना चाहती हूँ. नहीं बताएं ना, आपको क्या लग रही है कीमत? सर, ये तो आप बताइए, आप गए थे, मैं तो थी नहीं वहाँ. तो फिर आप, मेरा सवाल तो सुन ले सर. दूसरा तो पहले कीमत तो चुका लेना. सर, सवाल अच्छा, प्लीज. चलिए सवाल कीजिए. देखिए ना, ये सवाल से पहले तमहीज की जरूरत क्या थी? सवाल कीजिए. सवाल सुनने कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आपने फरमाया कि बातचीत चल रही है, इसमें पाकिस्तान का रोल क्या? कोई गाल होने भी दोगे? ये इरादा नहीं है आपका? हाँ, माशाल्लाह. देखिए, पहली बात है, पाकिस्तान कोई कीमत अदा नहीं कर रहा. पाकिस्तान को अपने मफादात के दिफा का इल्म है, हम उससे गाफिल नहीं हैं. डिप्लोमेसी में चीजें जो होती हैं वो चुटकी बजाने से नहीं होती. यू हैव टू चिप, यू हैव टू वर्क ऑन दम, और आप मुसलसल कोशिश करते हैं और पेशरफ्त होती है. कोई बटन नहीं होता जो आप दबाएं और फौरन आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाए. हमारी जो ख्वाहिश थी, जो हमारी कोशिश थी, जिस तरफ हम मामलात को देखना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक, मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेकाम हो. खबर आई है कि ईद पर दोनों साइड ने फैसला कर लिया सीज फायर का. ये अच्छी डेवलपमेंट है ना, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है. सीज फायर तालिबान भी और अफगान गवर्नमेंट ने आपस में मिलकर तय किया है. इजंट दैट बिग न्यूज? नहीं, नजर से नहीं गुजरी होगी हालपन, गुजरी है. अच्छा चलो, मुबारक हो फिर, मतलब कि अच्छी खबर है, नजर से गुजर गई. कोई कीमत अदा नहीं कर रहे. पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किए हुए है और कर रहा है और आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह. सर, मतीन भाई जी. शुक्रिया. अफगानिस्तान पे जो कल हमारी स्टेट लीडरशिप थी, वहां पर जो उनकी बातचीत हुई अफगान सदर के साथ, ये कहा जा रहा है कि या तो पाकिस्तान जो है वो काबिल गवर्नमेंट के साथ हो या तालिबान के साथ हो. कन्फ्यूजन बहुत है. दूसरा ये बताइए, क्या पाकिस्तान पे दबाव बढ़ रहा है कि वो अमेरिकी फोर्सेस को पाकिस्तान में कुछ एयर बेसिस थे, कुछ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वंस अफगानिस्तान में एयर बेसिस जब क्लोज होंगे तो वो कुछ अपने ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान के एयर बेसिस इस्तेमाल करना चाहते हैं.
Right. Will they talk diplomat? Please clarify. Is Right. there any US pressure on Pakistan? Got it. मदीन, पहली बात, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है, पाकिस्तान अफगान अमन के साथ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुशहाली के साथ है, पाकिस्तान रिकन्सिलिएशन के साथ है। हम किसी फरीक के साथ, किसी धड़े के साथ नहीं हैं। हम पूरे मुल्क की बेहतरी चाहते हैं और उसकी जो काविश कोशिश जो कर सकते थे कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। जो कल डेवलपमेंट हुई है जिसका मैंने जिक्र किया है, एक सीज फायर का ईद के दिनों में, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये एक जिसे कहते हैं ना, माहौल को इनेबल करेगी। वो रिडक्शन ऑफ वायलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। हमने गुफ्तशुनीद करनी है तो उसमें वायलेंस का रिड्यूस होना एक माहौल को साजगार बनाता है। तो वो उस साजगार माहौल के लिए ये एक अच्छी डेवलपमेंट मैं समझता हूं और पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया है। हमने उस पर खुशी और मुसर्रत का इजहार किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए पाकिस्तान पे दबाव की क्या बात है। पाकिस्तान ने जो करना है अपने मफादात को सामने रख के करना है। पाकिस्तान के मफाद में है अफगानिस्तान का अमन व इस्तेहकाम। हमारी जरूरत है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो और उसके लिए हम जो कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सवाल यह है बेसिस का। देखिए पाकिस्तान की बड़ी वाज़े पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने अपनाई है। वी विल बी पार्टनर्स इन पीस, और ये हमारा रोल होगा, रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर, वो हमारा रोल है। अब फैसला तो उन्होंने करना है, मुल्क तो उनका है, आग तो वहां लगी हुई है, उसको बुझाना किसने है? भाई बाहर के लोग तो हेल्प कर सकते हैं ना, असल तो बुझाने वाले घर के लोग हैं जो अंदर घर में बैठे हैं और अपने घर को जलता देख रहे हैं। तो उसमें उनने क्या करना है, ये उन पर जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा आयत जिम्मेदारी उन पे होती है। बाकी दीगर दोस्तों का एक रोल है उसको आगे बढ़ाने में। तुर्की अपना रोल प्ले कर रहा है, कह रहा है कि इस्तांबुल में आइए बैठिए हम फैसिलिटेट करते हैं, रोल कर रहे हैं। दोहा ने अपना रोल प्ले किया, उन्होंने कहा आइए बैठिए हम फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है ना जी। तो दोस्त ममालिक रोल प्ले करते हैं। बुनियादी जिम्मेदारी अफगानों की है और हम उनके लिए दुआ को हैं। बेसिस नहीं भैया, हम कोई यहां बूट्स ऑन द ग्राउंड की इजाजत देने का इरादा नहीं रखते और पाकिस्तान में कोई बेस मुंतकिल नहीं हो रहे। बीबी आप कीजिए और उसके बाद आप कर लें। Honestly, I didn't follow the question properly. Pakistan? Yes. Pakistan has always been encouraging them to engage, and we feel that engagement gives them the international respectability, the international recognition that is required. It enhances their role. And if they want to be acceptable, if they want delisting to take place, if they want recognition, then engagement, giving up violence and looking for a political solution is in their interest, and they have been open. And you've seen the progress that did take place. They did come to the negotiating table. You did see a peace agreement signed in Doha. You did see development in the shape of commencement of dialogue between the two parties. You did see progress on the rules and procedures, a consensus and agreement on that. And yes, we also saw the stocks we also witnessed a stalemate, and hopefully with this new development that has taken place yesterday and calling for a ceasefire, and hopefully post-Eid, if the Istanbul conference takes place and that moves ahead, inshallah things will move ahead, hopefully. Ji. सर आपका एक स्टेटमेंट आया, आपको में बात कर रहे थे आर्टिकल 30 पे, आप उसकी एक वजाहत भी दे चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अफहाम है। एक तो सेशन है, सवाल समझ आ गया। दूसरा इसका जवाब ले ले पहले।
इसका दूसरा भी कर दीजिएगा। देखिए, अभाम होना नहीं चाहिए और अभाम बिला वजह क्रिएट किया जा रहा है। उसमें नासमझी भी हो सकती है, सियासत भी हो सकती है। अब एक हो सकता है तबका है जो ना समझ रहा हो, उसको समझाने की जरूरत है, और एक तबका है जो सियासत कर रहा हो, जिसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर का मसला ऐसा है जो सियासत से बलतर है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान की पोजीशन मुसलसल हम उसका इजहार कर चुके हैं, मेरे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी के, फॉरेन ऑफिस के उसमें मुख्तलिफ बयानात हैं, हमारे खतूत हैं, हमने जो मरासले भेजे हैं सदर सलामती काउंसिल को, हमने जो मरासले भेजे हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, उसमें मेरे भाई कोई अभाम नहीं है। अब 2 आर्टिकल्स का जिक्र किया गया और एक खास तबका उसको हवा दे रहा है, नॉट रियलाइजिंग दे आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ दोज इंडियंस हु वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन। इनकी तो कोशिश होनी चाहिए, एंड आई डोंट ब्लेम देम। उनको जो मौका मिलेगा वो कभी नहीं जाने देंगे। ये हिंदुस्तान का खासा है। बाहर नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 370 जो है उसकी अपनी अहमियत है। वो बात करता है उनके तशख़्ख़ुस की, वो बात करता है उनके जो उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया था हिंदुस्तान के आइन में, जो कि अपना फारूक अब्दुल्ला साहब ने और नेहरू साहब ने तवील 5 माह के मज़ाकरात के बाद जिस पर एक मुआहदा किया था, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और एक स्पेशल गुंजाइश हिंदुस्तान के आइन में दी गई। जब उसको रिवोक किया गया तो लामोहाला उस पर तशवीश का इजहार किया गया, कश्मीरियों ने उस पर इजहार किया। वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के साथ मुख्तलिफ हुकूमतों में शामिल रहे, कोलिशन पार्टनर्स रहे, उनने हमें कबूल नहीं है। आपने हमारा तशख़्ख़ुस मिटा दिया, आपने हमारा झंडा, हमारी पूरी हैसियत खत्म कर दी, हमें कबूल नहीं है। और यकीनन पाकिस्तान को भी उस पर तशवीश थी और हैर होनी चाहिए। ठीक, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि देखिए, मसलन एक साहब ने तो ये कह दिया, ओ जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया। खुदा के वास्ते, पाकिस्तान ने कोई यू टर्न नहीं लिया और न लेगा। ये कहा गया, ये इंटरनल मैटर कह दिया वजीर खारजा ने। ये बताइए, जब एक मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पे है, जब एक मसला फॉरेन ऑफिस के एफर्ट से 5 अगस्त के बाद 3 मरतबा सलामती काउंसिल में मौजू रहा है, ज़ेरे बहस रहा है जी, एक मसला जिस पे सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं, तो इंटरनल मैटर तो हो ही नहीं सकता। ये नासमझी की बात है या फिर उसको किसी के ईमा पर एक रुख देने की बात है। तो मैं इस अभाम को दूर करना चाहता हूं इस वजाहत से। नंबर 2, आर्टिकल 35A। 35A की अहमियत इसलिए मैं उजागर कर रहा हूं कि अभी हमारी गुफ्तो शुनीद हिंदुस्तान के साथ तो नहीं है, आपका कोई डायलॉग नहीं हो रहा, कोई उस किस्म की आपकी फॉर्मल टॉक्स नहीं हो रही। और हिंदुस्तान ने जो 35A को रिवोक कर दिया है, उसके जरिए जो डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली लेके आए हैं और नॉन कश्मीरियों को वो वहां राइट दे रहे हैं टू बाय प्रॉपर्टी एंड टू गेट वहां की जो क्या कहेंगे उसको, डोमिसाइल, हाँ डोमिसाइल। तो उससे उसके पीछे एक सोच कार फरमा है, और वो सोच है वो जो डेमोग्राफिक बैलेंस जो है उसको डिस्टॉर्ट करना, उसमें छेड़छाड़, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कल को कोई पेशरफ्त होती है अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक भी, तो वो जो इम्बैलेंस है वो उस अक्सरियत को, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत की शक्ल देना चाहते हैं। तो इस पर हमें तशवीश है, क्योंकि ये अमल उनने जारी कर दिया है। इसकी बेपनाह इसकी टाइमिंग को देखना है, इसको हमें देखना है कि हमें इसको रोकना, उसको रुकवाने में हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हम कर रहे हैं। हर फोरम पर हमने ये आवाज उठाई है, बिकॉज टाइम इज ऑफ एसेंस। और जितना हम इसको सरफ नजर करेंगे और वक्त गुजरता जाएगा, तो वो अपने लिए माहौल साजगार करते चले जाएंगे। लेकिन कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इंटरनल मैटर नहीं हो सकता। कश्मीर का हल सलामती काउंसिलों में मौजूद है और पाकिस्तान उस पर
अपना नुक्ता नजर पे अपने हिस्टोरिक मौकिफ पर कायम है। ठीक, हिंदुस्तान के इक़दामात से कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार और उस पार उन्होंने उन्हें मुस्तरद किया है बशमूल पाकिस्तान के। हम अपने उस मौकिफ पर कायम हैं, कोई अभाम नहीं है और कोई फिक्र की बात नहीं है। पाकिस्तान ने पहले रखा था, बताया था कि हमारी 4-5 शराइत हैं, ये मुकम्मल होगी तो हम भारत के साथ टॉक्स करेंगे, या वरना नहीं। आप आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाने का करते हैं कि एग्जैक्टली जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप कहते हैं कि भारत को बनाना है ताकि मुज़ाकरात हो सके, वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप डिफाइन कर दें क्या है? पहली बात तो यह है कि इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, टॉक्स हो सकती हैं। उससे मतलब में तो हो रही है। सुन लेना यार, इस वक्त कोई टॉक्स नहीं हो रही, कोई फॉर्मल टॉक्स नहीं है। हां, टॉक्स हो सकती हैं और उसके लिए इक़दामात हिंदुस्तान को उठाने हैं। आपने कहा स्पेल आउट कर दें, मैं मुख्तसरन उसका जवाब ये देता हूं कि अगर हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान उनके साथ मेज पे बैठकर एक मीनिंगफुल डायलॉग करे, तो उसके लिए उन्हें जो कश्मीर में जो इस वक्त उनकी पॉलिसी है उस पर नजरसानी करनी होगी। वहां जो लोगों को रिलीफ दरकार है वो देना होगा। आज 18-19 माह हो गए हैं, वो एक कोविड लॉकडाउन का शिकार है और उसके साथ साथ वो मिलिट्री सीज का शिकार हैं, सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशंस का शिकार हैं। जी, कोई उनका लीडर हुर्रियत का, जैसे कि अभी सहराई साहब का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, तो उनके जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकते लोग। तो ये सब मुश्किलात हैं, उनको रिलीफ दिया जाए और वो जो तड़प रही हैं कि आपने हमारा तशख्खुस मिटा दिया, हमारा स्टेटहुड बहाल किया जाए, अगर ये कर दें तो ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इससे क्रिएट हो जाएगी। सर, during this visit, two big achievements which took place. One is prisoner transfer agreement, which was signed between the two countries. So, can you tell that how many Pakistani prisoners which are right now in Saudi jail, and how many will benefit from this particular arrangement which is made? And secondly, another big thing is Pakistan-Saudi Supreme Coordination Council, as you rightly mentioned, that can we know that what would be the scope of this council, and will it work under the foreign ministry or it would be an independent council, and like the main scope of this council? Well, let me start with the council. The council will work in the foreign ministry. The secretariat will be provided by the foreign ministry to this council. The secretariat of the council will be the respective foreign ministries, right? And I did mention the three pillars: the political security pillar, the economic pillar, and the cultural information pillar, right? These are the three pillars जिसमें engagement आपकी हो सकती है। एक दूसरा आपका सवाल था prisoner transfer का। देखिए, जब हम prisoner transfer की बात करते हैं तो what we have said कि वहाँ ऐसे prisoners भी हैं जो कि अपनी कन्विक्शन पूरी कर चुके हैं और कोई उनकी पेनल्टी है जो वो अभी चुका नहीं पाए और वो बेचारे जेल में पड़े हैं। तो उनको अगर सऊदी हुकाम वो वेव ऑफ कर दे तो उनको रिहाई मिल सकती है और वो घर आ सकते हैं। तो उनके लिए आसानी पैदा करना हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश भी है। एक बहुत से प्रिजनर्स ऐसे भी होंगे जो वहां ड्रग्स में इन्वॉल्व है और मतलूब थे और सजाएं हुई हैं, या हेनियस क्राइम, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। और हमें जब प्रिजनर्स की बात करते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन देम एंड देम। सो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ प्रिजनर्स who are involved in petty crimes,
who are still there because they have not been able to pay the penalties. उसके लिए हम चाहते हैं कि वो हमें facilitate करें. Anyone else? आपका ये सर जी. थैंक यू सर. जैसे अभी हालिया सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान और भारत के माबैन जो है वो कश्मीर के मामले पे रसूल को सालसी तक इत्तफाक करने की पेशकश की है. इससे पहले अच्छा. जिले मुबारक ऐसा कर चुके हैं, तो क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त इस मौजूदा दौरे के दौरान की गई है? देखिए, सऊदी अरब हमारा दोस्त है. सऊदी अरब हमारा दोस्त है और सऊदी अरब के हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं. उनका कारोबार है, वहां उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और वो बहुत बड़े उनके खरीदार हैं. सऊदी तेल के खरीदार हैं. अरबों डॉलर का तेल वो सऊदी अरब से खरीदते हैं. तो जब खरीदो फरोख्त होती है तो ताल्लुक तो होता है. एक है. अब उन्होंने एक तो वेलकम किया और सबने ही वेलकम किया कि जो हालिया फैसला हुआ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कि हम जो हमारा सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग थी 2003 की, वी आर रिवर्टिंग बैक टू दैट एंड दैट इज होल्डिंग अप. तो उस पे वो समझते हैं कि अच्छी पेशरफ्त है. हम भी समझते हैं, कश्मीरी भी समझते हैं अच्छी पेशरफ्त है. पाकिस्तान का तो पहले दिन से ही मौकिफ था. सीज फायर वायलेशन वो हो रही थी, वो कर रहे थे, निहत्ते शहरियों को निशाना वो बना रहे थे. हम महदूद थे, हम तो उस तरह फायर नहीं कर सकते क्योंकि वहां अगर हम फायर करते हैं और कश्मीरी मुतासिर होते हैं तो वो तो हमारे हमनवा हैं. हम उनको जख्मी करना या उनको मेम करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो ये एक डेवलपमेंट है. दूसरा, वो समझते हैं और दुरुस्त समझते हैं कि देखिए, दो मुल्क हैं, पड़ोसी भी हैं, और अगर इस रीजन ने तरक्की करनी है तो इनके अंदर जो गलत फहमियां हैं वो दूर होंगी तो रीजन तरक्की करेगा. आप देखें ना, इंट्रा रीजनल ट्रेड हमारी कितनी महदूद है. आप देखें ना, सार्क जो है उसकी फंक्शनैलिटी कितनी मुतासर हो गई है क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर वो एक खिंचाव तनाव दिखाई दे रहा है. तो अगर सार्क को आपने फाल करना है, अगर रीजनल इंट्रा रीजनल ट्रेड को आपने प्रमोट करना है, अगर रीजनल कनेक्टिविटी को आपने प्रमोट करना है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे. तो ऐसा होगा. और ये भी समझते हैं और बहुत से लोग समझते हैं कि दो मुल्क है जो पड़ोसी भी हैं और एटमी कुव्वतें भी हैं और जंग कोई ऑप्शन नहीं है, खुदकुशी है. तो वाहिद रास्ता क्या है? गुफ्तगू का है. उसके लिए कतरा रहा कौन है? पाकिस्तान तो नहीं कतरा रहा तो हिंदुस्तान है. अगर हिंदुस्तान तैयार है और माहौल कंड्यूसिव जैसे मैंने बात की है वो करने को तैयार है तो पाकिस्तान मेज पे बैठने के लिए पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है. तो उस पे कोई दोस्त, सऊदी अरब हो, कोई और दोस्त हो, जो भी उस पर अपना किरदार अदा करना चाहता है, हम उसको वेलकम करेंगे. थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन को पाकिस्तान ने कभी उससे इनकार नहीं किया. थर्ड पार्टी फैसिलिटेशन से इज्तनाब हमेशा हिंदुस्तान करता आया है, हमने तो कभी नहीं किया. थैंक यू जी. दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा. दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए. इसके मुस्बत नताइज आने वाले दिनों में जाहिर होंगे. मसला कश्मीर पर भी खुलकर बात की गई. पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम चाहता है. बिलखसूस अफगानिस्तान के सिलसिले में पाकिस्तान के किरदार को खराज तहसीन पेश किया गया. मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश है जिस पर वज़ीर आज़म ने अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह बयान किया है. पाकिस्तान का भी इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है. तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया समेत कई ममालिक ने मस्जिद अक्सा पर हमलों की मज़म्मत करते हुए तशवीश का इजहार करते हुए इसकी भरपूर मज़म्मत की है. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग आप इस्लामाबाद से बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे.